So drawing. So whenever you are doing object drawing, uh, it is very clear that how good you are at drawing those things. That means how good you are at observing those things. आपका जो observation है वो वहाँ पे clear हो जाता है. Welcome to Artwork Drawing and Design Academy. In the English video, which is recorded for specifically for object drawing. So we are nearing the MHCET AAC CET exams, that is Maharashtra Art level exams. Okay, so if at all you are a student who is preparing for these exams, or maybe you are preparing for the next year, this video is going to be very important for you, and it will give you many of the tips which you need to follow for object drawing. Okay, and other than that, the other thing which I would like to mention even before I start my video is that thank you so much for the overwhelming response which you are giving to my channel. It is really interesting to know that you are learning from me, and maybe you are getting to hear something new from me. So thank you so much, and do keep commenting on our channel. And also I have been lately making videos in Marathi because these two languages, English and Marathi, are two languages which I am comfortable with. I sometimes switch on and switch off in Hindi as well when I'm speaking in English videos, but just forgive me for that. And if at all you want me to purely speak in Hindi, or there are people who really want me to speak in Hindi, and maybe English is not so comfortable for them, then just mention that in video so that I know that which language is preferably good for making videos. So eventually, as I am practicing to make more videos, I'll probably get in a practice of using the specific language as well. Okay, to begin with, we are going to talk about object drawing. So as I have mentioned, I think I have mentioned in my Marathi video that object drawing is a basic subject. Basic subject in the sense all these three subjects which are there for the exams of BFA are basic subjects like memory drawing, object drawing, and design. Okay, these are basic subjects. At least you have to know this much about the visual, not about the drawing and painting, about the visual, about understanding the visual. So if you know this much, then you can incarnate this understanding into any kind of field. So that might be designing, or that might be specifically as such art field. Okay, I will be talking more about the differences between this, but right now we will stick to object drawing. So object drawing is one of the first subjects. Why first subjects? Because it specifically talks about the observation. It is only you are given a thing, you keep it in, you place it in front of you, and you only observe, you only look at things. So you actually, when we talk about drawing and painting, or in a way drawing, you are drawing out of something, your observation. There are several definitions about drawing, but what I feel personally, that drawing is pulling towards yourself, taking towards yourself, like how we pull drawers. So whatever you need, you pull that specific drawer. If you need a stationery, you'll put that drawer. If you need your clothing, you'll pull that drawer. So you draw that. So whatever you draw is very personal to you, and you have to understand. So that's why the drawing is very important, because it allows you and others also to understand so much about surrounding and about yourself also. Okay, so drawing. So whenever you are doing object drawing, uh, it is very clear that how good you are at drawing those things. That means how good you are at observing those things. आपका जो observation है वो वहाँ पे clear हो जाता है. This is the first subject where you only observe. You do not really need to use any of so-called your intellectual what will I say, capacities. Not that I'm saying that you need not be intellectual. You of course need to be intellectual for even drawing anything.
but this subject specifically, is trying to judge your observation, how good you are at observation. Then this observation is whether this observation is been able to retain in your memory. That is judged from the memory drawing. So the second subject is memory drawing, first object drawing, second subject is memory drawing, and then we come to design, whether you are able to uh, implement something of your own, or look at this stored things or retained things in your own ways, and try to transform and try to imagine something. That is really judged in the 2D design. So when we are when we are doing object drawing, nothing as such imaginary is happening. Whatever is happening, it is in front of you. Okay, this is one thing which you have to understand about the object drawing. So in the exam now, when we are doing object drawing, you are given an object and you are supposed to draw that. So what are few things? There are few things which you should be doing. There are few things which you should not be doing, and then a little more about object drawing. I'll just talk about it now. Okay. So first thing, as soon as you get your object, let's say you are in an exam scene now. First thing, as soon as you get your object, what are you going to do? You are going to spend a minute with just analyzing that object. Now what are you going to analyze about that object? Not 5-10 minutes, because you are in an exam scene, and it has to happen quickly in the fraction of seconds. Now how will this happen in the fraction of seconds? If you are practicing object drawing already, if you are into a practice of drawing, then this will happen in fraction of seconds, because you look at the object and you just realize. But realizing with a conscious mind, realizing it really consciously is very important. That is what I'm talking about. So what are you going to realize? What are you going to analyze exactly? So there are three things: that what what is the uh, what is the form. First is form. फॉर्म के साथ गलती नहीं करना है कि इसका बेसिक फॉर्म क्या है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए. What is the form of this object? So it might be a cylindrical, it might be following something which where you need to make like eclipse, it might be a box kind of a quadrilateral form में अगर कुछ होगा, box type होगा. तो ये इसका बेसिक फॉर्म क्या है, स्पेरिकल होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. ओके, ये एक चीज़ है जो क्विकली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको ये अपने आप को बतानी है कि ओके ये ऐसा है. ओके, फिर उसके बाद second thing which you are going to observe is what is the color and what is the tone. So this is really important. This is where people miss out. You cannot be missing out at this level, because if you miss out at this level, उसके बाद आप एग्जाम सीन में कुछ नहीं कर सकते. आप उसको इरेज करके वापस करना, आप पेपर स्पॉइल करते हो, एंड द ग्रेन्स ऑफ द पेपर आर स्पॉइल्ड, एंड देन यू आर अगेन रेंडरिंग ऑन इट. इट डजंट वर्क. So in the first go only, you have to tell yourself what you're going to tell. So for example, you just have to see where exactly this object is falling on the grayscale. So if at all you do not know grayscale, just try to read about the grayscale or understand grayscale. So grayscale में object कहाँ पे आता है? तो grayscale में object कहाँ पे आता है का मतलब क्या है, आपको समझना है. तो ऑब्जेक्ट वाइट है, वेदर इट इज रियली लाइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ ब्रेड, इफ इट्स एन एग, अंडा है, या कुछ सफ़ेद चीज़ है, गार्लिक, और ऐसी कोई चीज़ आती है तो वो वाइट है. तो आपको ये इमीडिएटली भाप लेना है कि इसमें अगर डार्क से डार्क टोन लगाया फिर भी ये लो की में नहीं जाएगा. अगर लो की में जा रहा है तो मतलब थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है. ये बहुत हल्का है, तो इसका बेसिक टोन ही वाइट है. दिस इज वाइट. और हाई की जो ऊपर वाले की होते हैं जिसमें वाइट ज़्यादा होता है, या फॉर इंस्टेंस लाइट ज़्यादा होता है, वो है ये ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट मैं बोल रही हूँ, आई नो इट्स अ नेचुरल थिंग, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट एज ऑब्जेक्ट फॉर the comfort of talking. Okay, so the second thing which you are going to, or वेदर इट्स बैंगन है या कोई डार्क चीज़ है, तो आपका जो कलर का अंडरस्टैंडिंग है ना कि रेड कहाँ पे आता है, तो रेड मिडिल की में आता है. इन जनरल रेड ऑब्जेक्ट्स मिडिल की में आएंगे, या वाइट कहाँ पे आता है तो हाई की में, येलो कहाँ पे आता है तो हाई की में. ये जो कलर का एनालिसिस है ना कि ऑब्जेक्ट ने आपने ऑब्जेक्ट को सामने देखा, ब्लैक चार्जर है तो आप क्या करोगे, और वहीं पे वाइट चार्जर है, मैं फ़ोन मोबाइल चार्जर्स की बात कर रही हूँ, जो कुछ भी आपके सामने ऑब्जेक्ट आता है इसका टोन एग्जैक्टली भाप लेना है कि ग्रे स्केल में कहाँ पे होगा. और जो बेसिक टोन है उसकी मैं बात कर रही हूँ, ऑफकोर्स हाईलाइट एंड डार्क्स उसमें होंगे,
तो वो उसमें गड़बड़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वाइट चीज़ों को ज़्यादा डार्क रेंडर कर दिया फर्स्ट को में, फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो उसको अंदाज। और अगर डार्क भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ जो डार्क है, तो भी आपको उसको लाइट मिडिल टोन से ही रेंडर करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप इवेंचुअली उस पर टोन बढ़ा सकते हो, लेकिन टोन कम करना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसके साथ गड़बड़ नहीं करोगे। ओके, you will keep this in mind that you are not going to make a mistake with this. Okay, so these are two things which you will basically have to quickly calculate and tell yourselves. After that, third thing is that इसका texture कैसा है, इसका feel कैसा है, ये बहुत important है। मैंने I have seen this, that generally there are so many videos on YouTube. I am not really into criticism or something, but sometimes people fall prey for not really something which is correct. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर पेपर है तो पेपर की तरह उसका फील आना चाहिए। अगर ग्लास है, कोई कांच है, ग्लास, तो उसका फील वैसे आना चाहिए। स्टील है तो उसका फील वैसे आना चाहिए। तो ये सारा जो कुछ है ना, अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है, वेलवेट है, कपड़ा है, तो उसका फील वैसे होना चाहिए। तो ये फील ऑब्जेक्ट में आप क्रिएट कर पाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपका रेंडरिंग का अंडरस्टैंडिंग, आपका जो रेंडरिंग का अंडरस्टैंडिंग है, दैट हैज़ टू बी रियली इंटैक्ट। ओनली देन यू आर ऑफकोर्स शेड एंड लाइट ऑल्सो एंड रेंडरिंग. You cannot create any kind of a feel without understanding shade and light. If you want to create a specific feel, you have to have a good understanding for shade and light. तो ये feel बहुत important है कि एक अपने आप से भाप लेना है कि इसका feel क्या होना चाहिए, इसका feel क्या है, ये पेपर है, ये कोई ब्रिटल चीज़ है, ये कोई हार्ड चीज़ है, ये अंडरस्टैंड सॉफ्ट चीज़ है, स्मूथ चीज़ है, वो सारा कुछ आपने अपने आप को बोल देना है स्टार्ट करने से पहले। अभी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो स्टार्ट करने से पहले, इफ व्हेन वी आर लुकिंग एट द पेपर, इफ इन द एग्जाम सिनेरियो वॉट एवर साइज यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज गोइंग टू बी I had written it, that is going to be somehow, okay, that is going to be 38 centimeters. Okay, in the exams, the paper size which you will be working on is an quarter size imperial paper. Okay, so the proportion of the quarter size imperial paper is 38 by 28 centimeters. So make sure that you all are practicing on that size paper even when you all are practicing at home. Okay, so that you all are used to and familiar to that space, and then when you are supposed to draw the object, your picture plane how much you have. तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने से पहले अभी ऑब्जेक्ट को रखना है, तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि वेयर आर यू गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट। सो ये इतना बड़ा पेपर है, उसमें जो कुछ भी आया है, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि व्हाट विल आई से, स्टेपलर आया है और स्टेपलर के पिन्स है और उसका बॉक्स भी है, पिन्स का छोटा बॉक्स है। वी हैव दैट एज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। आइडियली देयर आर नॉट 2-3 थिंग्स कमिंग, मोस्टली देयर इज समथिंग विच इज सिंगल थिंग इज कमिंग इन द एग्जाम। 2-3 गवर्नमेंट नहीं देता है ऐसे अपने पैसे लगा के, एक ही कुछ मिलेगा आपको। तो वो स्टेपलर है लेट्स से। तो स्टेपलर को कहाँ पे रखना है, आपके पिक्चर स्पेस में कहाँ पे रखना है, इसके लिए ग्रिड मेथड को आप इम्प्लीमेंट करो। आपके जो फोकल पॉइंट्स होते हैं, तो ऊपर वाले फोकल पॉइंट्स पे नहीं रखना है, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ हवे में लगती है। मैंने 2D डिज़ाइन की वीडियो में ये बात की है, शायद मराठी वीडियो में बात की है। तो नीचे रखना है और जनरली इस जगह पे रखना है कि वो ऑड नहीं दिखे। तो ये टेक्निकली करेक्ट जगह पे पेपर पे रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट सेंट्रलाइज भी नहीं रखना है। कभी भी कोई चीज़ एग्जैक्ट सेंट्रलाइज रखते हो तो वो बहुत ऑड दिखने लगती है, वो नहीं रखना है। इसके रीजंस क्या है, क्या होता है एग्जैक्ट विजुअली, ये मैं आपको कभी टाइम से बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी। लेकिन एग्जैक्ट सेंट्रलाइज कभी भी नहीं रखना है, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करो। ओके, ये एक बात है कि पेपर पे कहाँ पे रखोगे, या अगर आपने अंदाज ले लिया उसके बाद कैसे रखोगे, आपका जो सामने वाला प्लेसिंग है वो कैसे रखना है। तो ये करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो एग्जामिनर है वो ही विल ट्राई टू आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग नहीं देख रहा है, ये आपका एटीट्यूड भी एनालाइज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग देख के। तो आपने ना ऐसे एंगल पे चीज़ें रखनी है कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो शायद आपको लेट्स अभी स्टेपलर जैसे मैंने बात किया, तो आप स्टेपलर को ओपन करके रख सकते हो। आप स्टेपलर के अंदर अगर कोई पिन है तो उसे बाहर निकाल के रख सकते हो। तो ऐसे उसका जो कंपोजिशन है ना
वो आप बहुत केयरफुली कर सकते हो। फिर जो और ये कंपोजिशन किस बात पे डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड ऑन द positive and negative, that how is the outer space, how is the outer space of the form which you are looking at and which will eventually be there on your paper. So when it is on the paper, the balance of the positive and negative has to be very interesting. and वो जो outer contour drawing तैयार होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग का, काउंटर जो तैयार होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव का अच्छा प्ले होना चाहिए, तभी उसका प्लेसिंग ना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है जो आपने किया। अभी इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि बाद में हमें ही बनाने में दिक्कत होती है। तो कोई ऐसे एंगल जनरली रखना है जो आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आपने काम किया है। इसलिए पहले ही अभी प्रैक्टिस करते वक्त, अभी और दिन है आपके पास प्रैक्टिस के, तो प्रैक्टिस करते वक्त इस तरह से करना है, यू विल प्रैक्टिस इट इन अ वे कि वो आप वापस उसको उसी तरह से यूज़ कर पाओ। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है, मैंने कहा था वैसे ज़्यादा फोरशॉर्टन भी नहीं रखना है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में और आपने बहुत सारा ड्राइंग किया है, तभी आप फोरशॉर्टन यूज़ और ये सारे कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंट शायद फील नहीं कर रहे, तो आप एकदम इंटरेस्टिंग रखना है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ऐसे एंगल पे रखना है जहाँ से आपको बनाने में आसानी हो जाए, ये ध्यान में रखना है। ओके, फिर बनाते वक्त अभी उसके आगे प्लेसिंग के बारे में तो हमने बात कर लिया। फिर कितना बड़ा बनाना है, तो बड़ा हाउ बिग यू वांट टू ड्रॉ, तो हाउ बिग यू विल ड्रॉ, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इट हैज़ टू बी लाइफ साइज। रिमेंबर वन थिंग, स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में यही फ़र्क है कि स्टिल लाइफ का प्रपोर्शंस बहुत सारी चीज़ों के साथ एक दूसरे के साथ रिलेटिवली होता है, कंपैरिजन उसका होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए ना वो अकेला होता है ऑब्जेक्ट, और उसका एज सच किसी और ऑब्जेक्ट के साथ वहीं पे ऑन द सरफेस कंपैरिजन नहीं चल रहा होता। तो आपको क्या करना है, आपको लाइव उसका जो प्रपोर्शन है ना वो रखना है, मतलब जो उसका एक्चुअल प्रपोर्शन है लाइव वो रखना है। तो अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत छोटी चीज़ें आ जाती है, फॉर एग्जांपल शार्पनर है या मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स ज़्यादा छोटा नहीं है, मैच बॉक्स का खोलोगे तो उसको आपको उसको डायमेंशंस मिलते हैं, आपको अंदर एक डबल हो जाता है वो लिटरली, और फिर उसके अंदर मैचेस होके तो उसको लेके कंपोज, तो आपका जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई शार्पनर जैसी छोटी सी चीज़ आ गई, तो अभी क्या करेंगे, इतना बड़ा पेपर है आपका क्वार्टर इंटीरियर, उस पर इतना सा शार्पनर शेडो एक्सटेंड कर करके आप क्या करोगे, उतनी तो हम नहीं कर सकते। तो आपको तभी थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो। ओके, अभी कुछ बच्चे मैंने देखा है वो लिटरली ऐसे गिनते हैं, ऐसे लगा के गिनते हैं और फिर ऐसे बनाते हैं। तो ये आदत ना थोड़ी अच्छी नहीं है, कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन ना आपका विजुअल रीडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो कभी कभी ना ये बहुत ही ऐसे नहीं गिनते, आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि ये कितना बड़ा है। बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओके, अभी और एक गलती जो बच्चे ड्राइंग करते हुए करते हैं वो ये है कि आप लोग ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, तो देखो पर्सपेक्टिव अगर लेट से मैच बॉक्स आया है आपको एग्जाम में, तो मैच बॉक्स बनाते वक्त ना लिटरली उसका पर्सपेक्टिव इतना बड़ा बनाते हैं कि वो मैच बॉक्स नहीं दिखते हुए रेल का डब्बा लगने लगता है। तो आपको ये समझना है कि जो कुछ भी आपके आंखों के सामने है ना वो छोटी चीज़ है, इट्स अ स्मॉल थिंग, एंड पर्सपेक्टिव इज ओनली सीन when you have a bigger space. if you do not have a bigger space, पर्सपेक्टिव आपको दिखता ही नहीं है। तो अगर मैच बॉक्स है, शार्पनर है, तो उसमें नॉमिनल पर्सपेक्टिव दिखता है, मतलब 1 mm 2 mm ऐसा डिफरेंस आता है, मेजर डिफरेंस नहीं आता है। तो ये मेजर डिफरेंस करना भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ना मांगा देखते हैं या एनिमे देखते हैं, तो कभी कभी ऐसे बहुत सारा देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो क्या हो जाता है आपका ब्रेन ना ऑटोमेटिकली ना उसको एग्जैजरेट करना है। अभी ये एग्जैजरेशन आपको 2D डिज़ाइन में करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है, ओनली ऑब्जर्वेशन, नथिंग एडिंग फ्रॉम योर साइड। आप अपने साइड से क्या ऐड करना है ना वो भी मैं बात करूँगी थोड़ी देर में, लेकिन ड्राइंग करते वक्त थोड़ा भी एग्जैजरेट नहीं करना है, जो है जैसा है वैसे आना चाहिए। एग्जैजरेट करना नहीं है मतलब ऐसे खींचना नहीं है उसको, शार्पनर को ऐसे लंबा नहीं बनाना है, ऐसे नहीं, जो पर्सपेक्टिव दिखता है तो नॉमिनल पर्सपेक्टिव दिखता है, क्योंकि आप क्लोज डिस्टेंस में बैठे होते हो और पर्सपेक्टिव शायद दिखता भी नहीं है। ओके, जब भी आप कोई सिलेंड्रिकल चीज़ बनाते हो ना तो आपको बहुत ध्यान से एक्लिप्स दिखते हैं, बिकॉज एक्लिप्स आपके चेंज होते हैं, बिकॉज वो लेवल ही आपका नीचे जाता है। जब भी आप देख रहे हो, आप लोअर लेवल पे देखते हो, कभी कभी बच्चे ऊपर से बना देते हैं टोटल, तो वो ध्यान में रखना है कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। और ये करने के बाद ऑब्जेक्ट
आप ये करोगे, व्हाट डिड आई जस्ट मेंशन कि आप इसका ड्राइंग करेक्ट करना है। एक्लिप्स के बारे में मैं बता रही थी। तो एक्लिप्स जब भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आता है ना, आपको बहुत केयरफुली ये अपने आप से एक बार अंदाज लगाना है कि ये एग्जैक्टली एक्लिप्स कैसे दिख रहा है। क्योंकि कभी कभी देखो, आप घड़ी या कुछ बनाते हो, अपनी घड़ी या राउंडर ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, ऐसे सामने रखते हो ना, यू एंड अप मेकिंग अ एरियल पर्सपेक्टिव, मतलब ऊपर से बनाते हो, उसका पूरा डिस्क दिख रहा है, ऐसे बनाते हो तो ऐसे नहीं दिखेगा वो। उसका एग्जैक्ट जजमेंट लेना है कि एक्लिप्स कितने बड़ा दिख रहा है, और आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है ना, तो इसमें से आप कुछ भी नहीं करते हुए भी आपका ड्राइंग करेक्ट आएगा। तो प्रपोर्शंस करेक्ट देखने हैं और करेक्ट करते जाना है। ओके, दिस इज वन थिंग। आपको इसके साथ मिस्टेक नहीं करनी है। मतलब आपने जब ड्राइंग किया ना, तो ड्राइंग बहुत ही लाइट करना है। पहले तो हमने प्लेस कर लिया, ड्राइंग बहुत ही लाइट करना है, और आफ्टर यू फिनिश ड्राइंग यू हैव टू वंस रिकन्फर्म, करते करते ही रादर रिकन्फर्म करना है अपने आप से कि मैंने करेक्ट किया है या कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये तभी के तभी आप अंदाज ले लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हम पूरा बनाते हैं और फिर हमें रियलाइज होता है अरे ये तो गलत हो गया, थोड़ा सा ऐसा चाहिए था। वो नहीं करना, वो होना नहीं चाहिए। वो जो प्रपोर्शंस है, उसका प्रपोर्शंस का एक बार क्रॉस चेकिंग और ड्राइंग का क्रॉस चेकिंग, ये पूरा टाइम पे कर लेना है। ओके, और फिर उसके बाद हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे, कि जब भी आपको मैनमेड ड्राइंग तो करेक्ट होना चाहिए। ड्राइंग आपका प्राइम है ड्राइंग चेक करने के लिए, मतलब आप ऑब्जर्व करके ड्राइंग कितना कर रहे हो, वही जो मैंने बोला कि देख कितना पा रहे हो, करेक्टली देख रहे हो, और पेपर पे कितना बना पा रहे हो, ये तो वहाँ पे जजिंग हो रहा ही है। लेकिन इसके साथ अगर आप मिस्टेक करोगे तो आप फिर यू नो डोंट स्टैंड देयर। मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, लेकिन इसके साथ गलती नहीं करनी है। आपका ड्राइंग करेक्ट है, थोड़ा सा शेड एंड लाइट इधर उधर भी होता है तो चलेगा। अभी क्या होता है एग्जाम के सीन पे, शेड एंड लाइट पे आती हूँ मैं। ड्राइंग तो करेक्ट होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी शेड एंड लाइट, शेड एंड लाइट व्हेन यू आर डूइंग शेड एंड लाइट, आपको क्या करना है, कभी कभी ना यू विल हैव, यू डोंट रियली नो व्हाट इज द सेंटर, एंड you have a situation where light is coming from all the sides. So in that case you should have a folder, you should have a folder which you will use, and you will block the light from one side. If you want to understand how to make a folder and all everything like that, you just comment, I will show it to you in one video कि folder कैसे बनता है या कैसे रखना भी होता है। तो folder को use करना है, और उसको फोल्डर को यूज़ करने के बाद एक साइड से आपको लाइट को ब्लॉक करना है। अभी ये फोल्डर भी आपका कौन सा कलर का होगा ये डिपेंड करता है, बिकॉज आपने जनरली हर में हमारे एकेडमी में हम जब बच्चों को कराते हैं, हम फोल्डर ज़रूर यूज़ कराते हैं। और हम क्या करते हैं, वी यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ फोल्डर। सो अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है तो हम डार्क फोल्डर रखते हैं, तो आपको अच्छा खासा शेडो दिखता है। अगर कोई डार्क ऑब्जेक्ट है तो हम लाइट फोल्डर रखते हैं, तो आपका रिफ्लेक्ट लाइट और उसका इन जनरल टोन वो थोड़ा सा उसको बैलेंस कर लेता है। और उसके ऊपर एक डार्क ऑब्जेक्ट को डार्क फोल्डर में रखोगे तो पूरा उसका शेड एंड लाइट ही, जितना भी शेड एंड लाइट दिख रहा है वो कवर कर लेगा। तो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा करना है, और ब्लॉक करना है लाइट को एक तरफ से। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी आपको एक्सपीरियंस के साथ यू आर एबल टू डू दैट, आपको यू विल बी एबल टू डू दैट, एंड you will understand where the light is coming from. So now sometimes you get confused कि सब तरफ से लाइट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इन दैट केस आपको जनरली पता होता है, प्रैक्टिस कैसे आपने किया है, कहाँ से लाइट आएगी और कहाँ से शेडो आएगा, कहाँ पे रिफ्लेक्ट लाइट होगा। तो ये जो 6 टोन आपको बनाने हैं, स्पेसिफिकली 6 टोन आपके होने ही चाहिए। 6 टोन क्या है कि लाइट, मीडियम, डार्क, ये 3 हो गए। लाइट मेकर लाइट जो हाईलाइट होता है, और जो डार्क जो रिफ्लेक्ट लाइट होता है। ओके, ये 5 हो गए। और कास्ट शेडो आपका होना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट लाइट भी बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या बोलते हैं, passiveness, it doesn't show the how heavy it is. So reflect light is very important. You are, especially in the cylindrical objects or spherical objects, you should not do any mistake with the reflect light. Reflect light should not look like a highlight. Highlight is different and reflect light is different. It is a reflection of the light. So it कभी कभी दोनों भी उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। कभी कभी आपको दिखे भी स्ट्रांग, फिर भी आपको ऐसे बनाना नहीं है। तो ये अपने आप से भी कुछ चेंजेस हमने शेड एंड लाइट में करने हैं, क्योंकि
वो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है, ठीक है, कि ये इतना डार्क नहीं होना चाहिए, ये इस टोन पे रखना है और एग्जैक्टली क्या करना है। तो शेड एंड लाइट भी आपको करेक्टली रखना है। शेड एंड लाइट का मैंने पहले ही बोला है आपको कि आप पहले ही उसको अंदाज लगा लेना है, गड़बड़ नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अपने आप से कंफर्म हो जाओ कि ओके ये टोन पे करना है काम, तभी ही आप उसको स्टार्ट करना है। और आप मिडिल टोन से काम कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे डार्क बढ़ा सकते हो। एकदम से डार्क नहीं डाल देना है, एकदम से डार्क डाल दिया फिर आपका काम बाद में वो इरेज नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्लस अभी एग्जामिनेशन में क्या कैसे जजिंग होता है, तो ड्राइंग तो आपको कंफर्म देखते ही है, लेकिन समटाइम्स आई फील दैट देर आर सो मेनी पीपल हु आर जजिंग, तो हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स और मे बी जजिंग अ चाइल्ड। सो समटाइम्स I said that you should not do any kind of exaggeration or stylization, also stylization on that object. The object has to be purely object and purely observed and drawn the way it is. Okay, this is very important. Stylization and exaggeration doesn't work here. I have seen so many videos on YouTube which highly exaggerate and stylize the form. No, it doesn't work here like that. It's only a observational subject and you have to purely observe things. Okay, and the next thing is there are multiple people who are maybe judging the thing. So sometimes everybody has different views. So sometimes some people might like that you are just मेकिंग इट एज इट इज़। एंड कभी कभी ना आपका नेचर इस तरह से होता है, रादर सभी का होता है। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचर, तो इट शोज, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर ड्राइंग। सो ये जो एक्सप्रेसिव पोटेंशियल है ना ड्राइंग का, ये अगर आपका होता है तो कभी कभी ये आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज भी देता है। ऑफकोर्स ये जो इस चीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये सिखाने से नहीं आती है, ये आपके अंदर होनी चाहिए, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये जो एक्सप्रेसिव पोटेंशियल है ना, ये आपके अंदर होना चाहिए, और वो अगर है तो वो ड्राइंग में, लाइन क्वालिटी में, रेंडरिंग क्वालिटी में अपने आप दिखने लगता है और रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो अगर आपके पास ये है, आप अपने आप के साथ भी बहुत इंटैक्ट हो, ट्रू हो, इन्फ्लुएंशियल नहीं हो ज़्यादा, आप अपने आप के साथ ज़्यादा ट्रू हो, तो ये दिखता ही है रेंडरिंग में। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप कर पाते हो ना, तो आप बहुत अगर ये आपके पास है तो आपके लिए ये एडेड एडवांटेज की तरह, आपका बोनस की तरह ये काम करता है, ठीक है। बट दैट जान पूछ के कोई एक्सप्रेसिव क्वालिटी पोटेंशियल उसमें लाने की कोशिश नहीं करनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो आपने पर्पसफुली उसके अंदर डाली है, ठीक है। इफ़ इट हैपन्स, इट हैपन्स, spontaneity, expression and all. And if it doesn't happen, it is still fine. Okay, you're not being judged for that, you are being judged for the drawing and tonal values, shade and light. Okay, and your understanding about all these basic things. Okay, that's it about the object drawing. No making mistake with the drawing, ये आपने समझ लिया है। If there is anything which I have missed out, I will talk of, I'll just make a video where I'm technically talking about how you should be alert when you are in an exam scene. आप कोई गलतियाँ नहीं करनी है तभी एग्जाम सीन में, तो वो मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ड्राइंग स्पेसिफिकली करते वक्त ये मैंने कुछ बातें की है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और दैट्स इट। बी कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस आपको साथ लेते हुए चलना है। आप जब ये कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, तो आपका ड्राइंग अपने आप से कॉन्फिडेंट आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, ये मैं बताती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब ये आप एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले 15 डेज तक, मतलब आज से ही या कल से ही 15 डेज तक एटलीस्ट, एग्ज़ाम के एग्जैक्ट पहले नहीं, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले कोई प्रेशर और लोड नहीं लेना है, लेकिन उससे पहले यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉइंग अ डे, इफ नॉट टू एटलीस्ट वन। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस। सी, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग, दिस इज स्किल, दिस कुड बी लर्नड एंड दिस कुड बी डेवलप्ड। दिस इज नथिंग विच इज एज सच इनेट व्हेन आई टॉक, इट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपका अपना होता है, ये तो स्किल है, ये आप अचीव कर सकते हो, और ये अपनी स्किल आप खुद से भी उसको एनहांस कर सकते हो। तो ये बातें समझनी है और प्रैक्टिस में रहना है। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऑब्जेक्ट ड्राइंग, अभी कुछ दिन पहले जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे कुछ दिन पहले अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप कॉन्फिडेंट थोड़ा सा लूज़ करोगे, तो वो फिर आपके पेपर पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्रैक्टिस्ड में रहना है। देखो, अगर क्रिकेटर्स भी खेलते हैं तो जहाँ पे वो खेलने जाते हैं वहाँ पे जाके भी वो प्रैक्टिस करती है। ऐसे नहीं है कि वो अभी यहाँ से निकले ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो गेम से पहले प्रैक्टिस करते हैं।
तो प्रैक्टिस ज़रूरी है. ओके, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और ये अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आपका काम अच्छा होगा. ओके, दैट्स इट. इफ देयर इज एनीथिंग विच यू वांट टू नो, you can write in comments. And all the best for your exams. Okay, and do keep commenting on my videos if you want to hear them in an English and Hindi manner. Or just write me whatever it is about the language so that I understand. I actually forget when I talk, because I have been teaching for so many years, and I also lecture in designing colleges. So that time I'm most of the time using English, and sometimes I'll switch to Hindi also. So it happens just naturally, and I do not plan my videos as such कि मुझे कितनी बातें करनी है. तो just forgive me for that, and all the best and practice for your exams. Okay, and feel confident. Okay, bye bye. Thank you.